તો વ્યવસ્થિત, કકડાટ નહીં કરવાનો. અને તોય કકડાટ કરે પેલો અહંકાર, એવું હોતું નથી. જાગૃતિ રહી, જાગૃતિ એ જ આત્મા. વધતે વધતા 360 ડિગ્રી જાગૃતિ એ કેવળ જ્ઞાન, પરમાત્મા દશા. અને એ આપણે સત્સંગથી જ આવી શકે. વધારે વધારે અણસમજણો છૂટતી જાય, જાગૃતિ વધતી જાય. જાગૃતિ એ આત્મા, આપણે પોતે જ છીએ. એ જ આત્મા, એ જ આપણે પોતે. અને એવું નિરંતર ક્ષણે ક્ષણે ગમે તેવું ઊંધું થાય, આડું અવળું થાય, તોય આપણને સંભાવ રહે, નિર્દોષ દેખાય, તો કે નિરંતર આત્માનો એવો કહેવાય, હાજર જ. અને એ આપણે સત્સંગથી સમજણ ફીટ કરતા જઈએ છીએ. પોતાની ઊંધી શ્રદ્ધા બેઠી કે હા કરેક્ટ છે આજ્ઞા, એટલે વર્તન પેલું આવ્યું, એના હાથે બન્યા જ કરે, બહુ પાપનો જવાબદાર થતો જાય. દાદા પાસે આવે ભાઈ, એ વાતમાં વાત નીકળી એટલે સમજણ પાડી, હમણાં કોઈ જીવ નહીં, એમ કાગડાઓ એની મેળે ખાતા જ હોય છે ને, તમે બે ઉંદરડા નાખે, પણ આખી દુનિયાની વસ્તી કાગડાની કેવી રીતે જીવતી હશે? તમારા આધાર જીવતી હશે. એને પેલા શંકા પડે કે આપણું જ્ઞાન ખોટું છે, એની શ્રદ્ધા ઉઠી, તોય પેલું વર્તન આવ્યા કરે. 5-5 વખત આવ્યો, પણ તે દરેક વખતે એને પૂછ્યા કરે કે અરે આ મારું છું, ખોટું કહેવાય, કોઈ દુઃખ ના અપાય, હિંસા કહેવાય, પસ્તાવો કરે છે. કરતા 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 4 મહિને 6 મહિને પૂરું છૂટી ગયું. તો કે ઊંધું જ્ઞાન લોક પાસેથી મળ્યું. વિષયમાં સુખ છે, એ માન કીર્તિમાં સુખ છે, નફો પૈસામાં સુખ છે, એ લોકોનું જ્ઞાન. પણ આપણે શ્રદ્ધા બેસાડી એટલે એવા વર્તન આવ્યા જ કરે. કોઈ અપમાન કરે તો બહુ દુઃખ લાગે, કોઈ માન આપે તો ખુશ ખુશ થઈ જાય. અરે પણ આવું કેવી રીતે અસર થવા માંડી? તો કે આ લોક સંજ્ઞા, અજ્ઞાન. હવે આપણે શ્રદ્ધા ઉઠાડે કેવો Atlanta, and after Gyan, I mean I do see my mistakes now, and I do pratikrama, I mean shoot at side, but all that is through intellect or through buddhi. How or when will it start coming automatically from within, or what I need to do so that it comes out automatically from within without buddhi or using my intellect? Really, you are knowing that intellect is working, so you are separate from intellect. You are in the stage of awareness of your soul. So now continue your work and wash out your mistake. It's okay, wash out this mistake of Deepak. So let the intellect work, but it will resolve. And really intellect is not working, but your awareness is working, because it is awareness of Prajna Shakti. But intellect is taking over. Ego take over the, oh, I have corrected my mistake, I am good awareness now, I can experience Dada's, but ego take over the things. But we have to observe, oh, ego is in between, he is taking all this, he is possessing, he is taking that, oh, my awareness is better. We have to ask ego, why you are taking, you are really doer or is grace of Dada Bhagwan? Like your in stage of Prajna Shakti, we have to keep a separation with ego, intellect and mistakes. So try to keep your awareness exact. In stage of Prajna Shakti, we can apply this knowledge and we can see buddhi in the ego, so we are in the right direction. So don't worry, it is through buddhi or whatever, intellect, but you are knowing that buddhi is working, so you are knower and seer of buddhi. Thanks. So where the very important part, when something happens, suffering will take place. If according to your wish, so you will feel happiness. According to your not according to your wish, then you feel unhappiness. But that happiness or unhappiness is suffering is by that ego, and you are separate from ego. So you should not see that all the time it should be happy, I should feel happiness. It may get suffering, negative or positive, but you have to keep separation. So whatever happen, intellect will receive that things, and ego will get suffering, happiness or unhappiness. And at that time you have to keep awareness, oh, it is with ego, not with me, I am separate. And now
intellect will show something negative or say unhappiness is there, then intellect will show negative of other people, mistakes of other people. And when happiness will come to ego, so he will say, oh, these are the perfect, these are the good men, I am alright. So he feels, so ego will become bigger. Oh, I am good person, I am better than this, I am better than this. So pride will increase. So at that time you have to keep awareness, so keep separation. Right. That ego is now become bigger. So I don't want to encourage ego, I want to encourage my awareness only. So at that time you have to keep separation. And when he is seeing fault of other person, that time you have to wash out all the mistake. Don't see fault of other person. You understood? Yep. So both the time you have to keep awareness, happiness or unhappiness, good suffering or bad suffering. Suffering is by intellect and sufferer is ego. And if you watch on ego and intellect, then you are in the stage of pure soul, Prajna Shakti. Yeah. I realize that, and Gyan definitely helps me, keep cool. But when he's negative, he expects me to agree with him. So I don't know how to help this. What he expects? Like he expects that I should agree with him. Like suppose he feels world is coming to an end. So you have to say Syadvad. Yeah, definitely going to end, but when we don't know. On which second we don't know. Okay. 20 December 2012 we don't know which moment. And we are believing it is correct by our belief, our viewpoint. And we don't know future what will happen. But we have to understand, so our ego is also there. Why is arguing with me? Why he wants that I should agree with all the time? So our ego is there. So we have to dissolve our ego, our intellect. We have to adjust with that person. It takes a lot of energy. It's really, see, it is counterweight. According to Bolt, nut is there. So we have to keep, he is counterweight, our counterweight. So suppose you say he is a negative, so our too much negative part in in our prakriti, too much negative will be there. Negative or something, ego is there. Agra, something. So he is helping removing our mistakes. File 2. So if he says something negative, your intellect will upset and disturb, and so all disturbance suffering is due to our mistake. He is one of the evidence. He is not responsible for our suffering. Fault is of the sufferer. So we have to understand he is not Nimit, he is one of the evidence, and I am suffering, so our mistake is within me. So at that time, if you are observer of file 1, Shobha, you have to ask Shobha, see positive, in relative, see positive, his viewpoint is there, try to understand his viewpoint, see as a pure soul, this is file, you have to solve it equanimity, try to keep some bhav. So your energy will increase. Once you disturb, but again you set this jnana, that will increase your energy to practice 5 principles, to keep equanimity. Slowly, your energy will increase, definitely. And whatever our intellect shows negative of file 2, ask file 1 to do pratikama, why you are seeing negative of file 2. And don't give opinion, because all the time he may not negative. Out of 100, 2 times he may be positive. To find out something positive will be there. So don't see all the time he is always negative, I am tired of this person. Don't be hesitate, don't be disturbed, and try to find out positive of file 2.
one biggest part is allow you to go to satsang. Biggest positive. That's true. That is ultimate positive. And he's see in real life, means in worldly life, he is positive at least 20 times or 40%, 50%. He may be positive for you, for your child, for your house, everything, your parent. So see positive of that person, and he has that discharge atom of negativity, but it is all discharge part of his prakriti. He is pure soul, and whatever negativity is in discharge part, out of all discharge part, 20-40% positive or 40-60% negative. But see, as a discharge atoms, don't see he is responsible for that. In discharge, he is not really responsible today. And our counterweight is also there. So is helping to our all mistake is one of the evidence for removing our mistake. So we will be always taking positive. No, it is helpful for me. Otherwise, my mistake remain underground only. Why he's helping to come out my mistake, and I will wash out my mistake. हो जब तुम ग्रो करते हो तो जरा समझने में मुश्किल हो जाती है. मेरे हस्बैंड पंजाबी बोलते थे, मैं हिंदी बोलती हूँ. आज से मैं 15-20 साल में उनसे पंजाबी नहीं सीख पाई. तो मेरे को लगा कि गुजराती कैसे सीखूंगी. तो अब आपको 2 इसमें जवाब देने हैं मुझे कि आप हिंदी में क्यों नहीं बोलते ज्यादा, और दूसरा ये कि अगर आप नहीं बोलना चाहते तो आप मुझे शक्ति दे सकते हो कि मैं गुजराती सीख लूं. हाँ, वो स्पेशल दे देंगे. देखो, आप 55 साल तक, 54 साल तक अज्ञान थे आपके पास. हाँ जी. 1 साल में ज्ञान कितना सीख लिया आपने? 15 साल में पंजाबी नहीं सीखी, मगर 1 साल में ज्ञान कितना सीख लिया? क्योंकि आपने टच किया था मुझे, इसलिए. क्योंकि आपका निश्चय हो गया कि मुझे जानना है, समझना है. हाँ जी. आपका निश्चय होगा तो गुजराती भी आप अच्छी तरह सीख लोगे. पर आप आशीर्वाद दोगे? जरूर देंगे. आप दे दो. जरूर देंगे. विधि के टाइम देंगे. विधि जब होती है, हाँ. विधि लास्ट में कराएंगे, उस टाइम पे आशीर्वाद देंगे आपको. आप अपनी जगह खड़े हो जाना. अच्छा. और दूसरा क्या है कि ये जो सत्संग है ना गुजराती में जो होता है, तो क्या है कि गुजराती का परिचय हमारा ऐसा रहता है, जन्म से हम बोलते हैं, समझते हैं. तो वो जो बात निकल जाती है, वो 10 बात बतानी है, 10 तो 50 बात हम उसमें डिटेल में जा सकते हैं. और हिंदी में कहना है तो हम 10 में से 8 बोल सकेंगे, 6 बोल सकेंगे, फिर 10 भी नहीं निकल सकेंगे. ये शब्द कम पढ़ते, इंग्लिश में और कम पढ़ते. वही बात भाई ने पूछी इंग्लिश में, तो बहुत समझ लो 100 वाक्य बोलना है तो इंग्लिश में हम 25 वाक्य में पूरा करके बात कर देंगे. हिंदी में 60-70% बोल के छोड़ देंगे, और गुजराती में 200 तक बोल सकेंगे. और डिटेल में जाएंगे, और एक शब्द बोलेगा तो हम 25 प्रकार से उसको समझा सकेंगे, क्योंकि हमारे पास गुजराती सहज है. तो उसमें क्या है कि ढूंढना नहीं पड़ता, हमारे ब्रेन को एक्सरसाइज करनी नहीं पड़ती, सहज निकल जाता है. अच्छा, तो ऐसा ये नहीं है. सहज का जो वाला सत्संग है, हाँ जी. तो उसमें अच्छा डिटेल, सूक्ष्मता की डिटेल निकल सकती है. एक दूसरा उपाय है, हाँ जी. आप ये भावना रखो कि मुझे गुजराती जो भी बोले समझ लेना है. तो मुझे तो ये अनुभव होता है कि अभी देखो, मुझे 1 घंटे तक ऐसे कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में करना पड़ेगा किसी के साथ, तो नहीं मैं कर सकूँ. पर ज्ञान की बात में तो आराम से निकलते रहता है, कितना भी इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है. तो ये समझ में आया कि ज्ञान की बात कितने हिंदी भाषी या इंग्लिश वाले, अंग्रेजी भाषी वाले, वो बताते हैं कि ज्ञान की बात हम डायरेक्ट समझ लेते हैं. आप जितना भी बोलते हो हम पूरा समझ में आ जाता है. हम एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, या तो हम दूसरे को समझा नहीं सकेंगे, या लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मगर हमें समझ में पूरा आ जाता है. तो ये क्या कि ज्ञान की भाषा है, ज्ञान की स्थिति की वर्णन है ये. तो ये ज्ञान के बारे में आत्मा को सीधा ही ग्रास्पिंग हो जाता है और समझ में आ जाता है. तो आप इतना निश्चय करना कि गुजराती में जितना भी सत्संग हो मुझे समझ लेना है, हृदयगत कर लेना है, तो पॉइंट ऑफ व्यू तुरंत ग्रास्पिंग हो जाएगा. और आपको आशीर्वाद जरूर देंगे. और इंग्लिश
ये बहुत लोग इंग्लिश वाले या हिंदी वाले गुजराती समझ लेते भी है, और यहाँ आए हैं तो इनके साथ गुजराती में बात करते रहे ना। वो लोग आपसे गुजराती, आप तुम गुजराती बोलने का, हम हिंदी में जवाब देंगे, हमको गुजराती समझ लेना, समझ जाएगा थोड़े दिन में। नहीं, छोटा बच्चा बोलो, उसको गुजराती सिखानी पड़ती है, इंग्लिश सिखानी पड़ती है। हम 15 साल इंग्लिश सीखते हैं, वो अपने आप 3 साल वाला बच्चा अच्छा इंग्लिश बोलता है। उनकी पावर ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, हम वो ऐसा नहीं है। आप 55 साल शरीर के हुए हैं, आपका तो अनादि अनंत है, हम तो शुद्धात्मा अनंत ज्ञान वाले, कायम के ज्ञान वाले। इसके लिए निश्चय किया तो बहुत शक्ति सब। ये तो गुजराती हिंदी नहीं है, कितनी भाषा अनंत होता है, कितनी भाषा सीखी है, और बाद में आवरण आ जाता है। वापस निश्चय करोगे तो सब आवरण टूटेंगे, आवरण खुला हो जाएगा, ज्ञान खुला हो जाएगा। तो ज्ञान में ही मेरे दिमाग में आया है, ये रीटा के दिमाग में आया है, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चंस हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि एक गुरु है, सेल्फ रियलाइज सोल है, फिर महाविदेश है, फिर उसके बाद परमात्मा रूप है। तो आप मेरे को कृपा करेंगे कि सेल्फ रियलाइज, यहाँ तक मुझे पता लग गया सोल की जो प्रोग्रेस हो रही है, सोल ही मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ। तो इस बीच में और परमात्मा स्वरूप में जो बीच की सोल का प्रोग्रेस हो रही है अपवर्ड, जैसे कि मैंने पढ़ा कि इंग्लिश में पढ़ा था, मुझे हिंदी में वर्ड नहीं आता, कि ये सोल पहले लिबरेट होती है, फिर सेल्फ रियलाइज बनती है बाय दादा भगवान जैसे हैं, फिर उसके बाद वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है और सोल वहाँ भी प्रोग्रेस कर रही है, फिर वो कॉजल वर्ल्ड में जाती है, वहाँ भी प्रोग्रेस कर रही है, फिर उसके बाद वो फ्री होके परमात्मा स्वरूप चली जाती है। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप सोल की प्रोग्रेस बताएं तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी तो हमें यहाँ तक तो आप आ गए, मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ जी, ये तो अभी आगे का स्टेज की बात पूछनी है कि कहाँ से आए, वहाँ तक की बात पूछनी है। नहीं, सिर्फ इसके बाद में तो आगे की बात समझ लो। मैं शुद्धात्मा हूँ, पहले मैं ही रीटा मानते थे, वो ज्ञान दशा थी, वो छूट गई। अभी अंतरात्मा दशा हुई, मैं शुद्धात्मा हूँ। अभी अंतरात्मा दशा में 5 आज्ञा से हम परमात्मा दशा तक पहुंचेंगे, उसको केवल ज्ञान हुआ बोला जाता है। तो हम शुद्धात्मा दशा में है, वहां 5 आज्ञा वापरेंगे, उपयोग में नहीं है। फाइलों का संभाव से निकाल करेंगे। तो फाइल, अभी एक ही बात समझ लो, फाइल वाला है वो अंतरात्मा दशा है, और फाइल पूरी हो जाएगी, एब्सोल्यूट स्थिति में हम पहुंचेंगे तो परमात्मा दशा बोला जाएगी। तो हमें अभी 5 आज्ञा में रहना है, फाइलों का संभाव से निकाल करना है, और धीरे धीरे वहां तक हमें पहुंचना है कि एक भी फाइल क्लेम वाली बाकी न रहे इस लाइफ में, इस देह में, इस काल में। वहां तक पहुंचे तो बहुत आगे की स्थिति तक पहुंचे बोला जाएगा। अगर यहाँ के हिसाब हम पूरा करते हैं, हमारी आराधना है सिमंदर स्वामी भगवान की, तो हमारी इच्छा है कि दूसरी लाइफ हमें वहां मिले, उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए और केवल ज्ञान पूर्ण दशा हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि पूर्ण स्वरूप को हम देखेंगे, दर्शन करेंगे, तभी हमारी पूर्णता प्रकट हो जाएगी। तो अस्पष्ट वेदन हुआ है हमें, वहां से हमें स्पष्ट वेदन तक पहुंचना, इस लाइफ में, इस काल में हम पहुंच सकेंगे। वहां फाइल का क्लेम बाकी न रहे, ऐसी फाइलों का संभाव से निकाल करो एक। और हमारी मन की ग्रंथियां है, विषय विकार, मान, लोभ, मोह, सभी मोड़ सके, हम डाइल्यूट कर सके, प्रतिकोण कर सके, जागृति में हमें सभी प्रकार के दोष दिखाई दे, वहां तक पहुंचो। ये लाइफ का गोल होना चाहिए। और बाकी दूसरी भावना ये है कि महाविद्या क्षेत्र पहुंचे, तो अगले 1, 2, 3 लाइफ में हम वहां पहुंचेंगे समंदर स्वामी के पास, तो उनके दर्शन हो जाएंगे और केवल ज्ञान भीतर में कंप्लीट आत्मा निरावरण हो जाएगा। विदेह के कर्म बाकी रहे, वो पूरा होने के बाद निर्वाण बोला जाता है, और निर्वाण होकर सिद्ध क्षेत्र में स्थान प्राप्त करता है। वो एस्ट्रल वर्ल्ड और कॉस्मिक वर्ल्ड, वो सब हमारी पृथ्वी से बहुत नजदीक है। हमारे भरत क्षेत्र से, हमारे जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र, एक ऐरावत क्षेत्र, एक महाविद्या, तो हमारे क्षेत्र में इनका महाविद्या क्षेत्र पड़ता है। तो उनके पास तो इनका कनेक्शन भरत क्षेत्र के साथ है, सिमंदर स्वामी का। तो इन्हीं की कृपा से भरत क्षेत्र के जीवों का कल्याण होगा। इतनी बात हमें अभी समझनी है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। ज्यादा तो रोज का प्रोग्रेस कैसे करें, फाइलों का संभाव से निकाल करें, किसी को हमारे से दुख न हो जाए, किसी के हम दोष न देखें,
उतना पुरुषार्थ का रास्ता हम जारी रखेंगे और थोड़ा थोड़ा विज्ञान की बात समझते रहेंगे। तो मैं एक लास्ट रोज का क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? एक आखिरी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ रोज का? रोज का पूछ लो, चलो। वो नहीं तो ये अभी क्वेश्चन दूसरे है को कि- चांस देने की बात थी। एक बात पूछ लो, चलो। हाँ, मैं फाइल नंबर 2 को से खूब बहस करती हूँ और रोज ही फिर माफी भी मांगती हूँ। तो 1 साल हो गया। आते हैं फाइल 2 आते हैं। फाइल 2 यहीं बैठे हैं। हाँ, जैसे चल। तो मैं रोज माफी भी मांगती हूँ, रोज प्रतिक्रमण भी करती हूँ, पर कमी थोड़ी तो हुई है। पर ये तो क्या तरीका हुआ कि रोज करो, रोज माफी मांगो, रोज करो, रोज माफी मांगो। तो रोज खाना बनाने का, खाने का, हाथ धोने का, बर्तन साफ करने का, वापस साफ किए बर्तन में खाना बनाने का, वापस खाने का, वापस हाथ साफ करने का, बर्तन धोने का, वापस तीसरे दिन वही काम। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई हर्ज नहीं। नहीं, तो भगवान नहीं कहते कि तुम बार बार नहीं, माफी मांगो बात तो क्या है? दोबारा करो मत। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भाव में क्या करते हैं, हाँ। ये गलती हो गई, दिल से पश्चाताप करते हैं, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। तो ये किया, वो हम गेहूं के दाने डाले और उगते हैं कौन से? बाजरे के दाने। 2 खेत अलग है, 2 दाने अलग है। एक उग रहा है, पिछला जो डाला था वो आज उग रहा है, आज नया डालेगा बाद में उगेगा। हम कोई बीज तो हम जला भी देते हैं, उगेगा ही नहीं नया, पर जो उगा उसको तो भुगतना पड़ेगा। तो 2 बात अलग है, एक परिणाम है, एक कॉजिस पार्ट है। परिणाम वाला हमारे कंट्रोल में नहीं। पूर्व भाव में बीज डाले तो उसका फल आया, वो फल यानी परिणाम। परिणाम के टाइम नए बीज गिरने वाले थे अज्ञानता में। हम ज्ञान जागृति से नए बीज गिरने न देते हैं, या तो नए बीज धो डालते हैं या तो नए बीज सुधार देते हैं। वो पुरुषार्थ हमारा है। समझ में आया? तो बार बार हमारी भाव है कि हमें किसी को दुख नहीं देना, वो भाव में रखना है। और हो गया तो दिल से पश्चाताप लेंगे और निश्चय करेंगे कि ऐसी इस प्रकार का दुख न हो जाए। एक स्टेप। और दूसरा स्टेप ये करना कि ये दुख किस वजह से हुआ हमारे से सामने को वाले को। हमारा मोह था, हमारा मान था, हमारा लोभ था, हमारा आग्रह था, हमारी मनमानी करनी थी, हमारी क्या गलती थी। वो गलती को इन डिटेल स्टडी करते हैं तो ताकि मुझे पता लग गया कि मेरी बात नहीं मानते, तब मुझे गुस्सा आता है। हाँ, बात नहीं मानते तो मेरी बात है कि रीटा की बात है। वो नहीं मानने वाले वो खुद है कि शुद्धात्मा है। सब एनालिसिस करो और हमारी बात में कितनी इंपॉर्टेंस है, आग्रह है, और उनका व्यू पॉइंट से जचती है या नहीं जचती। हमें हमारी गलती तो ढूंढो, और हमारी बात न माने तो उनकी गलती है कि हमारी बात समझाने की गलती है। हमें ऐसी कहानी चाहिए कि उनको स्वीकार हो जाए। हम आग्रह रखते हैं तो उनका रिएक्शन होता है, तो हमारी गलती देखो। और वही पुरुषार्थ हमें सब डीवीडी पुस्तक सब दादाजी पढ़ के ये स्टडी करना है कि हमारी प्रकृति में कौन सी गलती है कि उसकी वजह से सामने वाले को हम दुख पहुंचा देते हैं। और ये महसूस भी हो जाता है रोज महसूस होता है, इंफॉर्मेशन मिली जैसे समझो और डिटेल में जाओ। जब तक हमारी गलती खत्म ना हो जाए वहां तक हमें पुरुषार्थ करना है। तो चाहे कितने भी साल लग जाए। तो फिर क्या एक अवतार निकालना है? अनंत अवतार चले गए, उसमें कहा हमें जागृति नहीं थी, और एक अवतार में अभी एक साल में तो इतनी जागृति आ गई। तभी बुद्धि क्या है, मनमानी इधर भी करना चाहती, जल्दी पहुंचना है। धीरे धीरे पहुंचेंगे। पहले जल्दी पहुंचना है, फिर किसी को दुख देना बंद करो। अहो अहो ज्ञानी पुरुष करुणा सिंधु अपार, अक्रम मोक्ष उघाड़ियो महा उपकार। मन वच काया चरण धरू, आत्मा थी जे भिन्न, अहम ममता परिहरु, सर्वस्व चरणाधीन। स्वरूप शुद्ध सम
चंदुलाल आज थी वर तो आज्ञाधीन, निश्चय थी शुद्धात्मा हूँ छूं स्व आधीन। जे स्वरूप अज्ञान थी भव भटकण ना फेर, स्वरूप ते समझाविणे लाव्या दादा निज घेर। ज्ञात पिता हो ज्ञानी जी, प्रगट दादा भगवंत, ज्ञात पुत्र हूँ आपनो, तम थकी छे भव अंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, प्रेम स्वरूप परमात्मा निश्चय सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा, वर्ते देहातीत, आज्ञानी ना चरण मां, हो वंदन अगणित। देह छता जैनी दशा, वर्ते देहातीत, दादा ना चरण मां, हो वंदन अगणित। दादा ना चरण मां, हो वंदन अगणित। दादा ना चरण मां, हो वंदन अगणित। चलो चलते चलो दादा भगवान जय जयकारे बोलते चलो चलते चलो दादा भगवान जय जयकारे बोलते चलो। हाँ बोलते चलो चलते चलो दादा भगवान जय जयकारे बोलते चलो। दादा भगवान के असीम जय जयकार हो, ओ दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। हाँ दादा दादा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। हाँ बोलते चलो चलते चलो दादा भगवान जय जयकारे बोलते चलो। सब धर्मों का सार बताए
पल में दादा पार लगाए, सब धर्मों का सार बताए। पल में दादा पार लगाए, जग के तारणहार अक्रम ज्ञान अवतार। हाँ बोलते चलो चलते चलो दादा भगवान जय जयकारे बोलते चलो। बोलते चलो चलते चलो दादा भगवान जय जयकारे बोलते चलो। निष्पक्षपाती त्रिमंत्र है, सबको लगे यही अपना है। निष्पक्षपाती त्रिमंत्र है, सबको लगे यही अपना है। तेरा मेरा छोड़ दादा से रिश्ता जोड़। तेरा मेरा छोड़ दादा से रिश्ता जोड़। हाँ बोलते चलो चलते चलो दादा भगवान जय जयकारे बोलते चलो। बोलते चलो चलते चलो दादा भगवान जय जयकारे बोलते चलो। दादा कृपा पार उतारे, स्वामी सिमंदर से तार मिलाए। दादा कृपा पार उतारे, स्वामी सिमंदर से तार मिलाए। सदैव मुक्ति पाए, यही मोक्ष सुख वर्ताए। हाँ बोलते चलो चलते चलो दादा भगवान जय जयकारे बोलते चलो। बोलते चलो चलते चलो दादा भगवान जय जयकारे बोलते चलो। दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। हाँ दादा दादा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। दादा दादा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। हाँ बोलते चलो चलते चलो दादा भगवान जय जयकारे बोलते चलो। बोलते चलो चलते चलो दादा भगवान जय जयकारे बोलते चलो। दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। हाँ दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। हाँ दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। हाँ दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। दादा आए रे आए, ये तो अक्रम विज्ञान वाले। दादा आए रे आए, ये तो अक्रम विज्ञान वाले। दादा आए रे आए, ये तो अक्रम
अक्रम विज्ञान वाले। दादा आए रे आए, ये तो अक्रम विज्ञान वाले। अरे 1 2 3 नहीं, ये तो 5 5 आज्ञा वाले। अरे 1 2 3 नहीं, ये तो 5 5 आज्ञा वाले। दादा आए रे आए, ये तो अक्रम विज्ञान वाले। दादा आए रे आए, ये तो अक्रम विज्ञान वाले। आया महात्माओं का टोला, आया महात्माओं का टोला, आया महात्माओं का टोला। आया महात्माओं का टोला। सर्व अवस्था समाधि वाला, सर्व अवस्था समाधि वाला, सर्व अवस्था समाधि वाला। सर्व अवस्था समाधि वाला। कोई मारे करे चाहे गाली भी दे, कोई मारे करे चाहे गाली भी दे, कोई मारे करे चाहे गाली भी दे। कोई मारे करे चाहे गाली भी दे। तो भी बदले ना, तो भी बदले ना, तो भी बदले ना मन के भाव भाव। दादा आए रे आए, ये तो अक्रम विज्ञान वाले। दादा आए रे आए, ये तो अक्रम विज्ञान वाले। एक अवतारी पद की प्राप्ति, एक अवतारी पद की प्राप्ति, हाँ एक अवतारी पद की प्राप्ति। एक अवतारी